UPSC to release prelims answer keys immediately. These objections, along with the provisional keys, will be referred to a panel of subject experts who will review and finalize them. आप पेपर बनाते हुए पहले से ही आप क्यों नहीं प्रिकॉशन रख सकते? आप जब पेपर बनवाते हैं तो आप अथॉरिटी से क्यों नहीं बनवाते? आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बंदे को कह देंगे ठीक है भैया 10 क्वेश्चन तुम भेज दो, 10 क्वेश्चन तुम भेज दो। जब बंदा क्वेश्चन बनाएगा तो वो आंसर भेजेगा, तो उसी को क्यों नहीं बोलते कि भैया सोर्स साथ में अटैच करो? स्टूडेंट को परेशान करोगे कि 3 अथॉरिटेटिव जो है सोर्सेज आपके पास होने चाहिए। The decision is considered to be an effective and adequate redressal of the grievances raised in the petition and to enhance the level of transparency in the functioning of the UPSC, the affidavit said. Friends, at last we have a good news from UPSC. अभी 2 दिन पहले UPSC चेयरमैन ने इंटरेक्शन किया था आप लोगों के साथ. It was just an eyewash. Whatever he said, everybody knew before. But this is the news. It is neither in Hindu nor in your Express. It is from Hindustan Times. What does it say? UPSC to release prelims answer keys immediately. मैं तो बार बार कहता रहा हूं. इवन परसों उन्होंने नहीं कहा बिकॉज द मैटर इज सब जुडिस. बट व्हाट वाज द नीड टू बी सब जुडिस? आप ऐसे क्योंकि वो नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट का डंडा ना पड़े. Whenever any matter related to UPSC goes to the court, UPSC कहता है नहीं, we are above. Ironically, courts also submit to UPSC कि नहीं भैया UPSC के मामले में टांग नहीं अड़ानी. For the first time, I think you should thank the court for what UPSC has done. The UPSC has agreed to publish provisional answer keys provisionally immediately after civil services preliminary exam and allow candidates to file objections before results are finalized, a significant policy shift after years of resistance. हमेशा वो मना करते रहे हैं. अभी अभी उन्होंने the shift is particularly striking given UPSC's position in May इसी साल when opposed the idea as counterproductive and warned it could delay the exam process. अभी 5 महीने पहले जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव था. अब ये जो है जेन्युइन लॉजिक प्रोग्रेसिव एक्शन हो गया क्योंकि यूपीएससी को पता लग गया कि ये जो कोर्ट है ये अब उनकी सुनने वाला नहीं है. In an affidavit filed before the Supreme Court bench led Justice P.N. Narasimha, the Commission said it has undertaken a comprehensive deliberation and taken a conscious and well-considered decision to enhance transparency. जैसे भाई ने कहा कि इट्स टू लेट. क्या यूपीएससी को पहले से ये अकल नहीं थी? क्या इनके पास सजेशन पहली बार आई है? 10वीं बार तो मैं अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ. इट इज अनजस्ट टू द स्टूडेंट्स. पर्टिकुलरली 3 क्वेश्चन हटा दिए. क्यों हटा दिए भाई? आपके पास क्वालिटी चेक नहीं है कोई, लेकिन वो करते हैं. द पॉलिसी शिफ्ट एड्रेसेस ईयर्स ऑफ ग्रीवेंस फ्रॉम द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स who argued that they had no way to challenge mistakes in the preliminary exam that determines whether they are advanced in the selective process without a file a candidates. अब अगर आप फाइनल रिजल्ट आने के बाद मार्कशीट रिलीज करते हैं, आंसर की रिलीज करते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्शन अगर फिल करता है तो सीधी सी बात है सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानेगा कि अब तो बहुत लेट हो चुकी, आपको पहले आना चाहिए था. और पहले का तो कोई स्कोप ही नहीं था. The court is hearing the petition seeking immediate disclosure instead of the current practice of releasing them only after the entire exam cycle concludes. UPSC will invite representations and objections from examinees which must be supported at least by 3 authoritative sources. इसमें पेच है. 3 authoritative sources कहाँ से लाओगे भाई? authoritative sources तो एक ही काफी होता है. मान लो हिस्ट्री की कोई बात अगर भाषण कह रहा है तो आपके कोई भी हिस्टोरियन जो है उसको मना नहीं कर सकते.
अगर कोई भी बात हमारे जो एंशियंट हिस्टोरिकल सोर्सेज कह रहे हैं, इतिहास सोर्सेज, एक है स्मृतिज कैन बी डिबेटेड, लेकिन उनमें से भी मनुस्मृति को तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए कोट किया था, जिसको कि सभी लोग गालियां देते हैं। These objections, along with the provisional keys, will be referred to a panel of subject experts who will review and finalize them. आप पेपर बनाते हुए पहले से ही आप क्यों नहीं प्रिकॉशन रख सकते? आप जब पेपर बनवाते हैं तो आप अथॉरिटी से क्यों नहीं बनवाते? आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बंदे को कह देंगे ठीक है भैया 10 क्वेश्चन तुम भेज दो, 10 क्वेश्चन तुम भेज दो। जब बंदा क्वेश्चन बनाएगा तो वो आंसर भेजेगा, तो उसी को क्यों नहीं बोलते कि भैया सोर्स साथ में अटैच करो? स्टूडेंट को परेशान करोगे कि 3 अथॉरिटेटिव जो है सोर्सेज आपके पास होने चाहिए। The decision is considered to be an effective and adequate redressal of the grievances raised in the petition and to enhance the level of transparency in the functioning of the UPSC, the affidavit said. ट्रांसपेरेंसी की होश पहले नहीं थी उनको? यूपीएससी पहले से क्यों नहीं कर सकती? अब एक चीज और जो है जो इसमें नहीं कही गई है, एंड आई लाइक दैट द पेटिशन गॉट टू ऐड टू दिस, वो ये है कि इंटरव्यू के मामले में या तो द पीपल, द यूपीएससी मेंबर्स, दे आर आइदर दे आर नॉट कॉम्पिटेंट और देयर इज सम स्कैम। रीजन इज, एक बोर्ड का एवरेज स्कोर इंटरव्यू में 160 होता है, दूसरे बोर्ड का 130 होता है, नॉर्मलाइज नहीं किया जाता। अब रिटर्न में 50% भी नहीं ला रहा, इंटरव्यू में 75% ला रहा है, तो क्या उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? फिर उसके बाद जो रीजनल स्टूडेंट्स हैं, रीजनल लैंग्वेजेस के स्टूडेंट और SC ST रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के मार्क्स से ऑन एन एवरेज कम होते हैं यूपीएससी में इंटरव्यू में। क्या इसके बारे में पिटीशन नहीं हो? इंटरव्यू के मामले में जो इतनी डिस्क्रिपेंसी है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूपीएससी मेंबर्स जो बनते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है टू जज अदर्स इन अदर्स पर्सनैलिटी? किसी ने उनका टेस्ट लिया है कि वो कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं? उनकी क्या सब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती? क्या उनकी पर्सनैलिटी में ब्लॉक नहीं हो सकता? जो 30 साल 35 साल जो है आईपीएस रह के क्रिमिनल्स को पकड़ता रहा है, वो क्या जज कर पाएगा कि आप क्रिमिनल हैं या आप ब्यूरोक्रेट बनने के लायक हैं? वो तो यही ढूंढेगा कि आप में क्रिमिनल के फीचर्स क्या हैं क्या नहीं। तो यूपीएससी मेंबर बनने के लिए भी एक खास तरह का जो है एक प्रोसेस होना चाहिए और ऐसे लोग चुने जाने चाहिए जो कॉम्पिटेंट हों दूसरों की पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए, क्योंकि बोर्ड की सारी पावर तो जो मेंबर होता है यूपीएससी का वही चेयरमैन होता है, स्कोर उसी को देना होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर ये मुद्दा नहीं है तो ये मुद्दा जोड़ना चाहिए टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, मोर रिलायबल। हम कोर्ट्स को जो है मानते हैं कि अल्टीमेट है जस्टिस में, आप लोगों के करियर के लिए तो यूपीएससी अल्टीमेट है। कोई एक इशू जो आपकी सक्सेस के बारे में मिसगाइड करता है आपके करियर के मामले में, आपके करियर का कम से कम 1 साल चला जाता है, आपकी जिंदगी का 1 साल चला जाता है। और करियर का जो साल जाता है वो पहला साल नहीं होता। मान लीजिए अगर 35 साल आपको सर्विस करनी है तो पहला साल नहीं गया, वो 35वां साल गया। जब आपके पास जितनी पावर होती, जितने पर्क्स होते, जितना अगर आप ह्यूमनाइज कर सकते थे, लोगों को करना चाहते तो कर सकते, वो वाला साल आपका गया। और यूपीएससी को इसके मामले में कोई शर्म नहीं आती। वो खुद लोग भी तो इसी प्रोसेस से गए हुए हैं भाई। पर फिर भी यूपीएससी को मैं बधाई देता हूँ कि देर से ही सही, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन और भी हैं कमियां, अंदर झांक के देखिए। बच्चों से कहूँगा मैं कि छोड़े नहीं यूपीएससी को, आधे अधूरे बीच रास्ते में जो है आपकी जो है कामयाबी अगर मेंस पे डिपेंड करती है, इंटरव्यू पे भी करती है। ऑब्वियसली प्रीलिम्स का मसला तो सॉल्व हो गया, मेंस के मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई शिकायत होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का उनका सिस्टम है वो कवर पेज बदलते हैं, तो आप खुद भी नहीं जान सकते कि आपकी कॉपी जो है कौन चेक कर रहा है, एग्जामिनर भी नहीं जान सकता कि किसकी कॉपी वो चेक कर रहा है। लेकिन इंटरव्यू के मामले में डेफिनेटली इस बार जो किया गया
स्कैम है टोटली। आप 215 217 नंबर दे रहे हैं उन लोगों को जिनके 50% स्कोर आ रहा है। यूपीएससी को भी सोचना चाहिए और मेरा ख्याल है कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। थैंक यू।